अपनी देनी हो तो। Good morning, everybody. On behalf of the Jindal Stainless family and the Jindal Hospital, it is indeed a great pleasure that we are here today with Dr. Mohit Gupta. And what better day than our Christmas Day, which is the day of merriment, hope, and love, and to learn about Raj Yoga meditation on this day from none other than Dr. Mohit Gupta, especially for the medical fraternity, is indeed a very joyous time. And I'd like to introduce Dr. Mohit to the faculty of Jindal Hospital. Dr. Mohit Gupta is working as professor of cardiology in JB Pant Hospital. He is also the cardiologist in Parliament Health Annexi. Dr. Gupta, sorry. Dr. Gupta has a distinct achievement of getting more than 18. Sorry. Dr. Gupta has a distinct achievement of getting more than 18 gold medals and 5 silver medals in his medical career. Dr. Gupta is a principal investigator of many research trials being conducted globally. He received National Cardiology Best Innovation Award for the year 2021 by the Cardiologic Society of India for his excellent collaborative work in artificial intelligence in heart attack patients. In 2018, he received prestigious KL Vigoration by Association of Physicians of India. Dr. Gupta was recently honored with Excellence in Cardiology 2018 award by Honorable Minister of Health and Family Welfare, Mr. J.P. Nada, for his excellent research in genetics. He was awarded Bishan Swarup Young Scientist of the Year Award 2018 by Honorable Vice President of India. He is currently using machine learning and artificial intelligence for measuring stress in healthcare workers and using Raj Yoga meditation technique for distressing them. He has more than 150 publications to his credit. He has been instrumental in starting research work investigating adjunctive role of meditation in coronary artery diseases. Dr. Gupta has been associated with Brahma Kumari's World Spiritual University from his childhood, more than 36 years, and practices Raj Yoga meditation daily. So what better person for us to speak about Raj Yoga meditation and science. Over to you, Dr. Mohit. Thank you so much for being with us. Thank you. Om Shanti and very good morning to all of you. Namaskar. It's such a pleasure. I hope my voice is clear. We have so many people joining across the continent, and what a wonderful day, a day of Christmas, a day of joy, a day of happiness, a day of sharing, a day of love. किसी ने बहुत सुंदर कहा है
कि सुकून की बात मत करे गालिब, सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाले इतवार अब नहीं आते। जिंदगी ऐसा लगता है कि सवेरे से शाम तक हमारी भागती दौड़ती जिंदगी निकल जाती है। ऐसा ही होता है ना। और कहीं ना कहीं जिंदगी में हम जिस सुकून को, जिस शांति को ढूंढने जाते हैं, उस शांति को ही सवेरे कहीं ना कहीं आप देखेंगे हम सवेरे गिरवी रख देते हैं। उस शांति को ही हम गिरवी रख के उसकी खोज में हम अपने संसार में निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत सुंदर यात्रा पर हम लोग चलने वाले हैं। और भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है। इस अध्यात्म प्रधान देश में अलग अलग प्रकार के मठ पंथ होते हैं, अलग अलग प्रकार का भक्ति वेदांत होते हैं। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान को याद करो। कैसे याद करो ये नहीं बताया जाता। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान को नहीं याद करेंगे तो ऐसा होगा, पर क्यों याद करें, किस तरीके से याद करें, ये शायद आज हमको नहीं बताया जाता। हमको ये भी बताया जाता है कि मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, गुरुद्वारे जाना है, लेकिन परमात्मा को किस रूप में स्थित होकर हमको याद करना है, ये भी हमको आज तक ज्ञान नहीं दिया जाता। फिर भी हम लोग भक्ति प्रधान देश के हैं, हम लोग बड़े प्यार से परमात्मा को याद करते हैं, उसको भगवान मानते हुए उसके आगे हम लोग भिक्षा भी मांगते हैं, भीख भी मांगते हैं कि हे पतित पावन कुछ ना कुछ हमको दो। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है और किस स्वरूप में हम उसको याद करें, आध्यात्मिकता है क्या। और आज इसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इसी यात्रा के माध्यम से मैं आज को आपको एक बहुत रिवीलिंग, एक अनोखी यात्रा पर लेकर चलूंगा। दोस्तों, ये साइंस से परिपूर्ण ये सेशन है। इसमें चाहे आप लोग डॉक्टर ना भी हो, उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगला 1-1.25 घंटा आप बिल्कुल दत्तचित होकर जो बातें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उन बातों को आप देखिएगा। और मैं आपको ये वायदा करता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के अंत में, कहते हैं ना कि हमारे दिमाग पर जितनी भी धूल या हमारे मन पर जितने भी जाले होंगे, वो संपूर्ण रूप से बिल्कुल साफ हो चुके होंगे। आपके मन में कोई भी इतना भी डाउट नहीं रहेगा कि हमको किस प्रकार से कैसे याद करना है। दूसरा, मेरा आपसे एक और विनम्र निवेदन होगा कि कृपया अपने आप को अनम्यूट रखें, और कृपया अगर पॉसिबल हो तो हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑन करके रखें। हमें लगेगा कि हम अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, हमें लगेगा कि हम आपस में रूबरू होकर ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर आपके लिए ये फिजिबल हो। तो दोस्तों, इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं। और इस यात्रा के अंदर सबसे पहले मैं अपने आपको डिस्क्लोजर्स दिखाना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस यात्रा के अंदर। और उसमें मैं आपको यही कहूंगा कि दिस इज अ ऑनेस्ट एफर्ट टू मेक सम लॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स, एंड दिस इज अ कंप्लीट ब्लेंड बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये एक अध्यात्म और साइंस के बीच में एक बहुत सुंदर वंडरफुल समागम है। तो चलिए इस यात्रा को आज हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, it is not just important to believe truth, but equally important is that once we understand to believe truth, you must hear and see it at the same time. ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब भी हम इस चीज को मानना चाहते हैं, जब भी हम इस चीज को समझना चाहते हैं, ये आज हम सबके लिए मानना बहुत जरूरी है कि कभी भी हम सत्य को जानना चाहें तो उसके लिए, सत्य को जानने के लिए उसको देखना भी जरूरी है और उसको सुनना भी बहुत 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 जरूरी है। देखिए, आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आज अपने जीवन को याद करें, अपना बचपन का वो जीवन, जब हमको जीवन के अंदर खुशी थी, प्यार था, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सब कुछ ना होते हुए भी हमारा मन, हमारा जीवन एक दूसरे के साथ सदा जुड़ा रहता था। जीवन में आनंद था, हम जीवन में अंदर खुश रहते थे। तब ऐसा लगता था ना कोई जीवन में जरूरी है, ना कोई जरूरत हमको महसूस होती थी। केवल खुशी ही हमारे जीवन का, आनंद ही हमारे जीवन का ध्येय होता था। लेकिन दोस्तों, चलते चलते आज हमारे जीवन में एक हमने लाइफ को रेस की तरह बना लिया है। एक महात्मा बहुत बढ़िया प्रवचन ले रहा था, और प्रवचन लेते लेते उसने एक बात बहुत सुंदर कही। जब वो बता रहा था तो सडनली वहां पर बहुत तेजी से भूकंप आया, और भूकंप आया तो सभी लोग भागने लगे, सभी लोग इधर उधर चले गए। लेकिन वो महात्मा बड़े दत्तचित होकर अपने स्थान पर बैठा रहा, अपने स्थान पर आराम से, शांति से बैठा रहा। लोगों को हैरानी हुई कि जहां सब लोग अपने प्राण बचाने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ये तो बिल्कुल शांत है।
पर थोड़ी देर बाद जब वो भूकंप सेटल हुआ तो कुछ लोग वापस आए और जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया था वो भी वापस उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, महात्मा जी, जब सब लोग भाग रहे थे तो आप अपनी जान बचाने के लिए क्यों नहीं भागे, आप तो यहीं पर ही बैठे रहे। तो उसने बड़ा मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि बेटा, जब सब लोग भाग रहे थे तो मैं भी भाग रहा था। उसने कहा, ऐसा कैसे, आप तो यहां बैठे थे। तो उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जब सब लोग बाहर भाग रहे थे तो मैं अपने मन के अंदर भाग रहा था। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि महात्मा जी, जरा और बताइए। तो उसने कहा कि बेटा देखो, जीवन में मानव जो है अपनी 5 नावों के अंदर सवार रहता है। आप अपने जीवन को ही स्वयं देखिए, वो 5 नावें कौन सी हैं। पहली नाव है हमारी धन की नाव, दूसरी है हमारी इच्छाओं की नाव, तीसरी है हमारी प्राप्तियों की नाव, चौथी है हमारे संबंधों की नाव और पांचवी है हमारी स्वास्थ्य की नाव। हर व्यक्ति इन 5 नावों में अपना पांव रखकर सवार रहता है। तो उसने कहा, बेटा लेकिन एक नाव, एक रास्ता हमारे अपने मन के अंदर भी जाता है, वो है स्वयं अंदर जाने का रास्ता। बाहर वाले नाव पर तो कुछ लोग हमारे साथ हो सकते हैं, लेकिन अंदर जाने का जो रास्ता है उस यात्रा पर हमको स्वयं ही जाना होता है। और बाहर की 5 नावों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अंदर का रास्ता जो है वो बहुत बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये अंदर का रास्ता क्या है, जिसको हम आध्यात्मिक मार्ग भी कहते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं, जिसको हम योग भी कहते हैं, वो किस तरीके से किया जा सकता है, उसका यथार्थ रूप क्या है, रूपांतरण क्या है, उसको हम अपने जीवन में कार्य करते हुए कैसे अपना सकते हैं, आज उसके बारे में हम चिंतन और विचार विमर्श करेंगे। आज की इस भागदौड़ में आप देखेंगे मानव ने भौतिकता की एक रेस में सामान खूब इकट्ठा किया है। उनकी तिजोरियां भर चुकी हैं, उनकी अलमारियां भर चुकी हैं दोस्तों, लेकिन जीवन के अंदर समीपता, जीवन के अंदर समर्पणता, जीवन के अंदर प्यार, सहनशीलता, समाने की शक्ति जो है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आज हमारे पास दवाइयां हैं, शरीर को ठीक करने के लिए दवाइयां हैं, लेकिन दोस्तों बड़े बड़े अस्पतालों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने मन को खुश रखने के लिए कोई दवाई आप देते हैं, और यदि देते हैं तो कृपया मुझे भी बताएं। आज हमारे पास अनेकों अनेक फैसिलिटीज होती जा रही हैं, एडवांस हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन क्या आज हम लोग वेलबींग को अचीव कर पाए हैं? शायद वेलबींग से आज भी हम लोग कोसों दूर हैं। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, आज 1 सेकंड में हम लोग मोबाइल का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति से कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहां बैठे हैं अमेरिका, लंदन, किसी से भी ऑस्ट्रेलिया, किसी से भी हम लोग अरब कंट्रीज में बात कर सकते हैं, लेकिन क्या आज मानव के पास कोई ऐसा साधन है कि वो अपने मन से, स्वयं से, परमात्मा से कनेक्ट कर पाए? शायद ऐसा साधन आज हमारे पास नहीं बना है। आज दुनिया गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग ट्रूली ग्लोबल है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे संस्कारों, हमारे विचारों की भी गरमाई है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन से वो सुख और चैन जो है वो समाप्त हो चुका है, बैलेंस जा चुका है। और जीवन में जब भी संयम, जीवन में जब भी बैलेंस चला जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कठिनाई आ जाती है, तनाव आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का आपको तनाव महसूस होता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कष्ट है, तो उसका कारण है सिचुएशंस, प्रेशर्स, लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं कोई बातें। हमको प्रेशर आ सकता है, हमारे परिवार के द्वारा प्रेशर आता है, हमारे सिचुएशंस, हमारी फैमिली के द्वारा आता है, संबंधों के द्वारा आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा आता है, और प्रोफेशनल प्रेशर्स भी होते हैं दोस्तों। लेकिन इन प्रेशर्स को डील करने के 2 ही तरीके हैं कि या तो हम लोगों को चेंज करें, अपने प्रोफेशन, अपनी गवर्नमेंट, अपने रिलेशंस को चेंज करें, या दोस्तों दूसरा आसान तरीका है हम स्वयं को भी शक्तिशाली बनाएं, अपने आप को भी संपूर्ण, अपने आप को भी सशक्त बनाएं, जिसके द्वारा बाहरी प्रेशर्स को हम लोग दोस्तों कम कर पाए। और यहीं पर हमारे मन का रोल आता है, हमारे संकल्पों का रोल आता है। दोस्तों, आज अगर आप कोविड का टाइम देखें, आप देखिए एक कोविड वेव गई, दूसरी गई, और अब तीसरी आने के कगार पर खड़ी है। दोस्तों, जब ये वेव आती है तो कोविड आने से पहले उसका डर आ जाता है, कोई भी परिस्थिति आने से पहले उसके साथ एसोसिएटेड जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होता है, वो भावनाएं हमारे ऊपर बहुत बहुत गहरा प्रहार करती हैं।
और कहां पर प्रहार करती हैं? हमारे संकल्पों पर, हमारे मन पर करती है। दोस्तों, आज जीवन में तनाव होने का कारण, जीवन में कहीं ना कहीं असंयमता होने का कारण है हमारा मन पर नियंत्रण ना होना, यानी अपने मन को अपना मित्र ना बनाकर रखना। तभी बुद्धा ने बहुत सुंदर रूप से कहा है कि हमारा मन एक बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल सर्वेंट है। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने मन के ऊपर से संयम को खो देते हैं तो यही मन जो है एक बहुत डेंजरस मास्टर बन जाता है, जो आज संपूर्ण विश्व में हो रहा है। क्योंकि आज मानव सब कुछ होते हुए भी अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण खो चुका है। डर, भय, चिंता और अनसर्टेनिटी की कल क्या होगा, ये भावनाएं हमारे ऊपर बहुत बहुत गहरा असर दोस्तों कर रही है। तो आज हम अपने जीवन की सबसे अद्भुत, सबसे रिवीलिंग यात्रा पर दोस्तों चलते हैं। ये ऐसी यात्रा जो शायद आपने ना कभी जीवन में सुनी होगी और शायद ही ना कभी आगे सुनेंगे। आप जानना चाहते थे कि क्यों हम योग लगाएं, आखिर साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समागम, उसका रहस्य क्या है? हमारे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो हमको चलाती है? हम भगवान को कैसे याद करें? हम तो इतना मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में गए, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह गए। लेकिन उस परमात्मा को कितना सहज रूप से हम याद कर सकते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, एक एक चीज साइंस के आधार पर आज मैं आपके समक्ष स्पष्ट करूंगा। और दोस्तों, ये यात्रा केवल आपकी बाहर की यात्रा नहीं है, आपके अंदर की यात्रा है, आपके जीवन की यात्रा है, परिवर्तन की यात्रा है। इसलिए इस यात्रा को बहुत आनंद से एंजॉय करें। तभी कहा जाता है योगा इज इन इज द वे आउट। दोस्तों, हमारे जीवन की जो कार्य प्रणाली है, आप देखेंगे हमारे जीवन के जो कार्य हैं वो हमारे हाथों के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, कान और नाक के द्वारा कार्य करते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, या जिसको हम कहें ये हमारे कर्मचारी हैं। मैंने अपने हाथों के द्वारा कार्य किया, मैंने अपने कानों के द्वारा सुना, मैंने अपनी जीभ के द्वारा चखा। दोस्तों, आपने कभी ये नहीं सुना होगा मैं आंखों ने देखा, मैं हाथों ने कार्य किया, मैं कानों ने सुना। अंदर बैठा हुआ कोई बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अंदर बैठा हुआ कोई बोल रहा है, मैंने अपने हाथों के द्वारा कार्य किया, मैंने अपनी आंखों के द्वारा देखा। अंदर बैठा हुआ कौन बोल रहा है? वो हमारा मिनिस्टर्स के रूप में आ जाता है, यानी हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारे संस्कार। लेकिन दोस्तों, मन बड़ा चंचल है, तो मन का मालिक कौन है? और मन का मालिक है हमारा राजा, हमारी आत्मा, हमारा साइकी, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोल, जिसको हम लोग इनर किंगडम का राजा कहते हैं। दोस्तों, हम जब भी परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं तो हम केवल अपने कर्मचारियों को यूज करते हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने मिनिस्टर्स के द्वारा यथार्थ रूप से कार्य लेते हैं तो हमारे जीवन में संयमता, हमारे जीवन में सिंक्रोनाइजेशन स्वतः ही आ जाती है। आज इसी साइंस को हम लोग बहुत सुंदर रूप से दोस्तों एक्सप्लोर करेंगे। क्या हमारे मन की शक्ति है और हमारे जीवन में साइंस और स्पिरिचुअलिटी, साइंस का और आध्यात्मिकता का समागम यानी बैलेंस क्यों आवश्यक है? व्हाट इज द साइंस ऑफ दिस सोल? दोस्तों, मेरे जीवन की ये जो यात्रा है 1992 में आरंभ हुई। ये मेरी पिक्चर है हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां मैंने अपना एमबीबीएस किया था। और गोल्डन जुबली की ये पिक्चर है, और ये टेबल जिसकी तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूं, इसी टेबल पर मैं शरीर को डिसेक्ट किया करता था, मानव बॉडी को एनाटॉमी के लेसन में डिसेक्ट किया करता था। 1992 दोस्तों, जुलाई अगस्त की बात है, और मुझे वो दिन अभी भी ध्यान आते हैं। दौड़ दौड़ कर अपने टीचर प्रोफेसर सेन गुप्ता होते थे, उनके पास जाता था और उनसे बोलता था कि सर, ध्यान से सुनिए सर, ये शरीर को मैं काट रहा हूं, इस शरीर को मैं डिसेक्ट कर रहा हूं, लेकिन इस शरीर की जो बायोप्सी ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो कहती है ये शरीर बिल्कुल ठीक था। इस व्यक्ति की डेथ नेचुरल हुई है, इसके हाथ हैं ये हिलते नहीं है, इसकी आंखें हैं ये देखता नहीं है, इसके पांव है ये चलता नहीं है, इसका हार्ट है ये धड़कता नहीं है, इसके लंग्स है ये सांस नहीं लेता, इसके अंदर से क्या ऐसी चीज नहीं है जो ये डेड बॉडी कहलाती है? तो वो मुस्कुरा देते थे, वो कहते थे बेटा इसके अंदर प्राण नहीं है, इसके अंदर वायु नहीं है। और ये बात मेरे मन को बहुत कचोटती थी कि ऐसा क्या मेरे शरीर में से चला जाता है जो लिविंग बॉडी से हम लोग दोस्तों डेड बॉडी बन जाते हैं, लिविंग बॉडी से डेड बॉडी बन जाते हैं। ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता था। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मेडिकल स्कूल के अंदर हमको एनाटॉमी यानी शरीर के अंगों के बारे में बताया जाता है।
फर्स्ट प्रोफेशनल वे, और उसी के साथ ये अंग आपस में कैसे काम करते हैं, जिसको फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, केवल शरीर की एनाटॉमी और शरीर की बायोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हमारी विजन जो है वो ट्यूबुलर हो जाती है। आज आप देखिए कि हम डॉक्टर्स या मैं हार्ट सर्जन, हम क्या करेंगे, हम हार्ट की आर्टरी को रिपेयर कर देंगे, जिसको सर दर्द होगा उसके सर के लिए दवाई दे देंगे, जिसको जोड़ों में होगा उसको जोड़ों का दवाई दे देंगे। लेकिन दोस्तों, हम केवल यही समझ कर देते हैं कि मैं ये शरीर ही हूं, इस शरीर के सिवाय मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। यानी ये विजन केवल कैमरा या ट्यूबुलर विजन हो जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमको ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग्स अर्थात ह्यूमस अर्थात बॉडी, और बीइंग अर्थात हमारे अंदर रहने वाली साइकी, अर्थात ह्यूमन बीइंग हमको कंप्लीट बनाता है। ध्यान से समझिए, कभी भी ह्यूमन नहीं कहा जाता, ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। दो चीजों का समागम हमारे अस्तित्व को दोस्तों कंप्लीट करता है। मेडिकल साइंस केवल ह्यूमंस को एक्सप्लोर करती है, स्पिरिचुअल साइंस बीइंग को एक्सप्लोर करती है, और दोनों का समागम हमारे कंप्लीट अस्तित्व को दोस्तों एक्सप्लोर करता है। अब आपका अगला प्रश्न हुआ कि डॉक्टर साहब, ये तो हम जान गए, लेकिन शरीर तो देखने में आता है, हम क्यों माने, कैसे माने कि ब्रह्मा कुमारी कह देती हैं अपने आप को आत्मा समझो, अपने आप को सोल समझो, अपने आप को कॉन्शियसनेस समझो। आपने माना, आपने कहा कि हम मानते हैं कोई अंदर प्राण और शक्ति है, लेकिन उसकी एविडेंस, उसकी साइंस हमारे सामने क्या है? तो आइए आज मैं आपको उसकी बहुत सुंदर रूप से साइंस बताता हूं। जैसे हमारे शरीर की एनाटॉमी होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की भी एनाटॉमी होती है। आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस की एनाटॉमी के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। बहुत सिंपल। अब आप ध्यान से देखिए, कोई व्यक्ति जो कि स्मोकिंग कभी नहीं करता, उसका मन एक विचार जनरेट करता है कि तुम स्मोकिंग करो। उसकी बुद्धि एकदम निर्णय लेती है कि ये गलत है, ये हानिकारक है, आपको ये नहीं करना है, और वो कर्म में नहीं लाता है। उसके ऊपर एक इंप्रेशन आ जाता है, मन में एक संस्कार बन जाता है कि ये आदत बुरी है, इस कार्य को मत करो। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो मन कहता है इस गरीब व्यक्ति की मदद करो, तो हमारी बुद्धि कहती है ये बिल्कुल ठीक विचार है, उचित विचार है, आप करो। हम कर्म में लाते हैं, वो हमारे मन पर, बुद्धि पर, हमारे ब्रेन पर एक इंप्रेशन छोड़ता है, और बार बार जब वो कर्म में आता है, वो हमारा एक संस्कार का रूप ले लेता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपने जीवन में देखिए। रोज सवेरे जब आप उठते हैं, तो क्या आपको उठते हुए सोचना पड़ता है कि आपको ब्रश करना है या वॉशरूम जाना है, या ऑटोमेटिकली चल देते हैं? आप लोग जरूर कहेंगे कि हम लोग ऑटोमेटिकली बाथरूम या वॉशरूम की तरफ दोस्तों चल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार, वो हैबिट हमारे जीवन में बन चुका है, बार बार करने के कारण। मन विचार लाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और संस्कार उसको एक हैबिट के रूप में दोस्तों परिवर्तन कर देता है। यही जब तीनों समावेश होकर कार्य करते हैं, इन तीनों का समावेश कॉन्शियसनेस कहते हैं, इन तीनों को ही हम लोग स्पिरिट कहते हैं, साइकी कहते हैं, बीइंग कहते हैं, गॉड स्पॉट कहते हैं, लाइट कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगला प्रश्न ये उठता है कि साइंटिफिक रूप से इसकी एविडेंसेस हमारे पास क्या है? केवल ब्रह्मा कुमारीज ने कह दिया या केवल डॉक्टर मोहित ने कह दिया तो क्या आप मान लेंगे कि आप आत्मा है? मेरा ये आपको विचार है, बिल्कुल नहीं। आप ये समझकर चलिए कि आप इस बात को नहीं मानते। एक एक एविडेंस को मैं आपको दूंगा, और अपने मन को आप प्यार से समझाइए कि कैसे हो रहा है। देखिए, ये तथ्य ऐसे पावरफुल होंगे जो आपके बिलीफ सिस्टम को एक नया दिशा निर्देश देंगे। आपके अंदर कई मान्यता है, उनको एक झिझोड़ कर एक नया परिप्रेक्ष्य देंगे, आपको सोचने पर दोस्तों मजबूर करेंगे। सबसे पहली एविडेंस जो हमारे सामने आती है वो है लॉजिक के द्वारा। दूसरी आती है स्टोरीज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ यानी रीइंकार्नेशन के द्वारा। तीसरी एविडेंस हमारे पास आती है आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के द्वारा। पांचवी आती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा, और छठी आती है डायरेक्ट एविडेंस यानी फंक्शनल एमआरआईज के द्वारा। आइए इनको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। पहला, आप लॉजिक देखिए। आपके पास एक गाड़ी खड़ी है, स्कूटर खड़ा है दोस्तों, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो छोटी मारुति गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, लेकिन गाड़ी की ब्यूटी तब आती है जब गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठता है। ये तो आप भी मानेंगे। जैसे ही ड्राइवर उसके अंदर बैठता है, गाड़ी को स्विच ऑन करता है, गाड़ी का हॉर्न भी बजता है, म्यूजिक भी बजता है, गाड़ी के अलग अलग फंक्शन भी चालू हो जाते हैं। लेकिन वो ड्राइवर बाहर आता है तो वो गाड़ी के फंक्शन जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और वो प्रैक्टिकली एक समाप्त गाड़ी की तरह, डेड गाड़ी की तरह खड़ी हो जाती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है।
दोस्तों इसी प्रकार ये हमारी ह्यूमन बॉडी है जो आपके इसी बराबर में। आप स्वयं सोचिए, एक व्यक्ति सडनली जी रहा है, अगले ही पल उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका हार्ट, लंग, ब्रेन, उसकी आंखें, उसके पांव, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन उन सब के अंदर ऐसी क्या शक्ति थी जो उनको चला रही थी और वो सडनली गायब हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो लिविंग से डेड बॉडी बन जाता है। ये हमको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि जरूर अंदर बैठी कोई शक्ति है, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। जो आप रोज कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब आप ये कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप ये नहीं कहते मैं आंखों ने देखा है, इसका अर्थ है आपके अंदर कोई बैठा हुआ है जो कह रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा, यानी ये आंख मेरी है, मैं इनके द्वारा देख रहा हूं। मैंने अपने हाथों से किया, अर्थात ये हाथ मेरे हैं, मैंने इन हाथों के द्वारा कार्य किया। मैं अपने मुख से खाया, अर्थात मैं अपने मुख के द्वारा चख रहा हूं। हम कभी ये नहीं कहते मैं मुंह ने खाया, मैं हाथों ने किया, मैं आंखों ने देखा। अर्थात अंदर समझ ये कहती है, बुद्धि ये कहती है, विवेक ये कहता है कि जरूर अंदर कोई शक्ति है। क्या है, कौन है, इसको हम नहीं मानते, अभी भी हम बिलीव नहीं करते, लेकिन हाँ जरूर कहीं ना कहीं मेरा मन कहता है कि डॉक्टर साहब जो बात बोल रहे हैं उसमें थोड़ी जान तो है, हमें कहीं ना कहीं तो दोस्तों इसको मानना पड़ेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एनर्जी हमारे शरीर को चला रही है, कौन और क्या, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों दूसरी एविडेंस जो हमारे पास आती है वो है डॉक्टर इयान स्टीवनसन के बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, रीइंकारनेशन के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, रीइंकारनेशन एंड बायोलॉजी। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जो लोग अपने पुराने जन्मों की बातों को ध्यान रखते हैं, ये सब साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, इनमें कोई भी ओपिनियन नहीं है, जो लोग अपने पुराने जन्मों की बातें जिनको स्मृति में आती हैं, उनके शरीर पर अक्सर ऑलमोस्ट 35 to 50% लोगों के अंदर के शरीर पर एक बर्थ मार्क्स देखा जाता है, या बर्थ डिफेक्ट्स उनके अंदर होते हैं। ऐसे उन्होंने 200-250 केसेस से भी ऊपर स्टडी किए हैं। उन्होंने इसका कंक्लूजन बहुत सुंदर रूप से निकाला। उन्होंने कहा कि मैं जरूर मानता हूं, समझता हूं कि एवोल्यूशन और जेनेटिक्स कार्य कर रही है, लेकिन ये बात भी माननी होगी, समझनी होगी कि री इनकारनेशन कौन करेगा, कोई शक्ति ही तो करेगी री इनकारनेशन भी एक पावरफुल बायोलॉजिकल स्ट्रीम है, और ये पावरफुल बायोलॉजिकल स्ट्रीम हमारे साइंस के साथ समावेश होकर हमारे अस्तित्व को एक परिपूर्ण रूप देती है। दोस्तों एक व्यक्ति जब पिछले जन्म की बात को याद करता है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में शो किया है, री इनकारनेट करता है दोस्तों, तो री इनकारनेट शरीर तो कभी भी नहीं करेगा ना, क्योंकि शरीर को तो दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। जरूर री इनकारनेट कोई शक्ति, कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी ही करेगी। वो एनर्जी कौन है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो आज मानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियरली समझ में हमारे आ गया कि साइंस हमको बार बार बोल रही है कि एक शक्ति री इनकारनेट करती है, और यदि री इनकारनेट करती है तो ये दो बातें हमारे सामने और भी स्पष्ट करती है। ध्यान से सुनिएगा, वो दो बातें कौन सी हैं दोस्तों, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को झिझोड़ सकती हैं। वो दो बातें रीइंकारनेट करने के बाद ये हमको स्पष्ट करती है कि यदि एक मानव अपने पिछले जन्म की बात को याद करता है, तो ये प्रूव करता है कि जो शक्ति दोबारा आती है वो मानव योनि के अंदर ही जाती है। और दूसरी बात वो शो करता है कि दोस्तों शरीर का अस्तित्व नहीं, हमारी आत्मा का, हमारी सोल का, हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी एनर्जी का ही अस्तित्व है। दोस्तों इस बात को लेते हुए हम लोग अगली एविडेंस के पीछे चलते हैं। थर्ड एविडेंस जो हमारे सामने आती है वो है डायरेक्ट, बहुत पावरफुल एविडेंस, वो है इंसिडेंट्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और ध्यान से सुनिए, ये बड़े मजेदार एक्सपेरिमेंट्स और जो रियल स्टोरीज जो मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे पहली जो स्टोरी आती है, इन जनाब का नाम है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर जेम्स बी टकर। डॉक्टर जेम्स बी टकर ने किताब लिखी है लाइफ बिफोर लाइफ। इन्होंने उन बच्चों की मेमोरीज को, लाइफ को एक्सप्लोर किया जो अपने पिछले जन्म की बातों को याद कर लेते थे। शुरू में लोगों को बिलीव नहीं होता था। इन्होंने इतने हजारों बच्चों की लाइफ को एक्सप्लोर किया, उनके अनयूजुअल बिहेवियर्स को एक्सप्लोर किया, और उसमें से ऐसे 2 से 3
स्टोरीज जो है आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो आपके सामने आपकी आंखों को सदा सदा के लिए बिल्कुल खोल कर रख देगी। दे विल बी कंप्लीटली रिवीलिंग फॉर यू, दे विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। देखिए पहली स्टोरी, ये छोटा सा बच्चा जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सैम टेलर। सैम टेलर, ये बच्चा जब केवल 3 4 5 साल का था और इसकी माँ इसका डायपर चेंज कर रही थी, डायपर यानी इसका कच्छा चेंज कर रही थी, तो ये बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, अपनी माँ को बोलता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तुम्हारे डायपर्स को चेंज किया करता था। इसकी माँ एकदम हैरान हो गई, ये डॉक्टर के पास लेकर गई, उनको भी नहीं समझ में आए, डॉक्टर टकर के पास लेकर गई, उन्होंने इस बच्चे की लाइफ को एक्सप्लोर करना आरंभ किया, उसको पुराने उसकी मदर की फैमिली की सारी पिक्चर्स दिखाई। ये बच्चा किसी को नहीं पहचान पाता था, लेकिन अपने ग्रैंडफादर को 20 लोगों के अंदर भी उस उम्र के अंदर बिना बताए उनको एकदम से पहचान लेता था। उनके बिहेवियर्स को, उनकी आदतें जैसी थी वैसे ही इस बच्चे की भी आदतें थी, और ये अपने ग्रैंडफादर के 18 महीने की डेथ के 18 महीने बाद इसकी पैदाइश हुई। ये अब संस्कारों में, अपनी हैबिट्स में कंप्लीटली ग्रैंडफादर को रिजेंबल करता था। डॉक्टर टकर के एकदम उनको हैरानी हुई, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये शो करता है, पॉसिबल है कि वही सोल रीइंकारनेट करके एक और नए बच्चे के रूप में डेथ के बाद उसने जन्म लिया है। तभी उसने अपनी माँ को क्लियरली बोला कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, अर्थात मैं पिछले जन्म में तुम्हारा पिता था, तो मैं तुम्हारे डायपर्स को चेंज किया करता था। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, ऐसा उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया। एक और बच्चा, ये बच्चा न्यूयॉर्क के अंदर रहता था, इसका नाम रायन था। ये रायन जब 4 साल का था, 4 साल का था, इसको नाइटमेयर्स होते रहते थे, सपने आते रहते थे। और एक दिन सपनों के आते आते इस बच्चे ने बहुत तेजी से अनाउंस कर दिया, बहुत तेजी से अनाउंस किया कि मैं इस जन्म में यहां पर हूं, लेकिन पिछले जन्म में मैं एक बहुत सुंदर डांस कंपनी के अंदर हॉलीवुड मूवीज में काम करता था। दोस्तों, इस बच्चे को एक्सप्लोर किया गया, इसकी पास्ट हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया गया, इसने और डिटेल्स बताई, और अल्टीमेटली आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्चे का जो अस्तित्व है वो मार्टी मार्टन नाम के एक व्यक्ति से कंप्लीटली मेल खाया। और ये व्यक्ति जो है ब्रॉडवे प्रोडक्शंस जो हॉलीवुड में थी वहां पर ये डांसिंग का कार्य करता था। इस बच्चे के संस्कार, इस बच्चे की लाइफ कंप्लीटली 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 बिल्कुल सेम रहती थी, एब्सोल्युटली सेम रहती थी। और ये एक बहुत बहुत रिवीलिंग साइंस थी, बहुत बहुत वंडरफुल साइंस थी, सभी के लिए हैरानी। तो ये शो करता है अगेन कि कहीं ना कहीं एक आत्मा, एक एनर्जी जो डेथ होती है वो अगले जन्म जब लेती है वो एक और मानव योनि ही लेती है। तो रीइंकारनेशन थ्योरीज के को स्टडी करके डॉक्टर जेम्स बी टकर ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी जिसको आप नोट कर सकते हैं, लाइफ बिफोर लाइफ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देखिए ये कोई धर्म, ये कोई बिलीफ की बात नहीं है, दिस इज प्योर साइंटिफिक, जिसमें बच्चों की मेमोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया। जैसे ही हम इस बात को समझते हैं कि प्रीवियस लाइफ को उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि एक मानव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, जरूर कोई शक्ति है, वो शक्ति उस शरीर को छोड़कर चली जाती है, नंबर 1। सेकंड मैसेज जो हमको मिलता है, वो शक्ति दोबारा जन्म लेकर मानव योनि के अंदर ही आती है, तभी वो उसी प्रकार की मेमोरीज को स्मृति में ला सकती है। दोस्तों, अगर आम का बीज लगाएंगे तो उसमें से तरबूज का फल नहीं निकलेगा। अगर मानव योनि की आत्मा है तो ये निर्धारित है साइंस के आधार पे कि उसको मानव योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, फोर्थ एविडेंस जो हमारे सामने आती है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बहुत पावरफुल, मैं और डीप एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा रहा हूं जो आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी मान्यताओं को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। दिस इज लाइक अनरेवलिंग एंड अनफोल्डिंग द मिस्ट्री, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और इसके लिए सबसे पावरफुल एग्जांपल है डॉक्टर ब्रायन वीस। वंडरफुल बुक, इनकी किताब जो है बहुत सुंदर है, जिसको पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और ये व्यक्ति अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। और इनकी कहानी कैसे आरंभ हुई, देखिए, फ्रॉम अ स्केप्टिक टू अ बिलीवर। ये कभी भी आत्मा, उसके अस्तित्व, पास्ट लाइफ के बारे में जैसे हम मानते ही नहीं थे। ये कहते थे ये सब बेकार की बातें, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। लेकिन दोस्तों, ये करते करते 1980 में ये इनकी फर्स्ट पेशेंट, देखिए
कैथरीन, जो बचपन में इनको मिली थी, 1980 में मिली थी, अब तो ये बुजुर्ग हैं, 2004 की ये पिक्चर है। कैथरीन वो अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस आकर अपने डॉक्टर साइंटिस्ट से, डॉक्टर ब्रायन वी से शेयर करती थी। ये इन बातों को मानते नहीं थे। वो बताती थी पिछले जन्म में ऐसी थी, मुझे ऐसा होता था, मेरे को ये बीमारी थी, मेरे हस्बैंड ये थे, मैं ये कार्य करती थी, इस प्रकार से इस कार्य को मैं निभाती थी। इस तरह के बातें वो उनसे शेयर करती रहती थी। ये मानते नहीं थे, लेकिन इनके मन में आया कि ये इतनी बातें बता रही है तो क्यों नहीं मैं पब्लिक रिकॉर्ड्स को चेक करूं। उन्होंने दूसरे टाउन में जाकर, जहां की वो बात बताती थी, वहां सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स को चेक किया। और दोस्तों 100% एक्यूरेसी से एक एक रिकॉर्ड बात जो वो कैथरीन उनको बताती थी वो बिल्कुल परफेक्टली वेरीफाई हो गई। परफेक्टली उसने सही बातें बताई। इनके मन को एकदम शॉक लगा, इनको झिझोड़ हुई अंदर से कि भाई ये तो कमाल है कि एक व्यक्ति पास्ट लाइफ की सारी बातें मुझे बता पा रहा है। और वहीं से उनकी यात्रा आरंभ हुई और इन्होंने 400 लोगों के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, 400 लोगों के अंदर। और उसके अंदर क्या बताया, जिस किताब का नाम मैं आपको बता रहा था उसका नाम है मेनी लाइव्स एंड मेनी मास्टर्स। दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ साइकेट्रिस्ट एंड हिज यंग पेशेंट एंड पास्ट लाइफ, जिसने दोनों के जीवन को चेंज कर दिया। आप इस किताब का नाम नोट कर सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं, लेकिन उसका परिपेक्ष, उसका जो एसेंस है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। इन्होंने बताया कि हमारी बीमारियां, हमारे फोबियाज कई बारी हमारे पुराने पास्ट लाइफ के अंदर रूटेड होते हैं। और जब भी हम उन बातों को एक्नॉलेज करते हैं वो हमारे को क्योर कर सकते हैं, हमको क्योर कर सकते हैं। अर्थात अगर ये पुराने लाइफ के मैसेजेस स्टोर होकर नई लाइफ के अंदर आ रहे हैं तो दोस्तों शरीर तो समाप्त हो जाता है, शरीर को तो जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो इन मैसेजेस को कैरी कौन कर रहा है, कौन इन मैसेजेस को अपने साथ ले जा रहा है? जरूर कोई शक्ति है, कोई कॉन्शियसनेस है, कोई एनर्जी है जो इनको लेकर आ रही है। चाहे आप उसको आत्मा का नाम दे, चाहे उसको कॉन्शियसनेस का नाम दे। और उस आत्मा को, कॉन्शियसनेस को जब आप रिग्रेशन में लेकर जाते हैं, अगेन एक्सपेरिमेंट्स में लेकर जाते हैं, तो उसके अंदर वो पुरानी सारी मेमोरीज जो स्टोर्ड होती है वो बाहर प्रस्फुटित दोस्तों हो जाती है। अगेन ये क्लियरली शो करता है कि इटर्नल एंटिटी एक आत्मा है, एक शक्ति है जो कभी भी मरती नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। जब हम इस जीवन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारा शरीर ही केवल दोस्तों मृत्यु को प्राप्त होता है, हमारी आत्मा सदा अमर और अविनाशी रहती है। दैट क्लियरली शोज, ये क्लियर साइंस हमको बता रही है। ना केवल ये भी हमको शो करता है कि हमारी आत्मा, हमारी एनर्जी, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इस शरीर से अलग भी सरवाइव कर सकती है, वो इस शरीर से अलग भी रह सकती है और अगले जन्म में लाकर अपने साथ पुरानी मेमोरीज को ले जा सकती है। तो क्या आत्मा कोई और फॉर्म ले सकती है? क्या हम ये कहें कि एक मानव आत्मा किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी और की योनि में जाएगी? दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है। आज साइंस ये हमको क्लियरली बताता है कि हमारे लिए रूल सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि एक व्यक्ति की आत्मा कुछ और बन जाए, एक व्यक्ति की आत्मा कुछ और योनि में जाए। ये पॉसिबल नहीं है। आज क्लियरली एक्सपेरिमेंट्स कंसिस्टेंटली दिखा रहे हैं कि हर प्रकार से आप देखेंगे हमारी आत्मा जो है वो प्रॉपर तरीके से मेमोरीज को लेकर मनुष्य योनि के अंदर दोबारा जन्म लेती है। दैट मीन्स व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, जब हम बात करते हैं, आज अपने आप को देखिए, हम शरीर से बात करते हैं, हम शरीर को ही ट्रीट करते हैं, शरीर को ही गोलियां देते हैं दोस्तों, लेकिन हम भूल जाते हैं कि शरीर के अंदर रहने वाली एक शक्ति जो अपने साथ संस्कार, अपने साथ जो कष्ट लेकर जाती है, उसको भी हील करना दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक है। क्या हम अपने इमोशनल सेल्फ को हील कर सकते हैं विदाउट फिजिकल इंटरवेंशन? उत्तर है यस, यस और यस। मेडिटेशन और योग का प्रयोग ही यही है कि आप, जिसमें शरीर का कोई मायने नहीं रखता, योग अर्थात अपने स्वयं की जर्नी, जिसके अंदर हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा के असली अस्तित्व को पहचानते हुए उसको कंप्लीटली हील कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म दोस्तों कर सकते हैं। फिफ्थ एविडेंस जो हमारे पास आती है वो है आउट ऑफ द बॉडी एंड नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। वेरी पावरफुल एविडेंसेस, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर रेमंड मोडी, ये एक फिलोसोफर, एक साइकेट्रिस्ट है, और इनको एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जॉर्ज रिची से मिलना हुआ। और डॉक्टर जॉर्ज रिची ने इनको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। ये कभी भी आफ्टर लाइफ या कभी भी आत्मा परमात्मा इन चीजों में बिलीव ही नहीं करते थे, वेस्टर्न लोग थे, फिलोसोफर थे। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस डॉक्टर ने, जॉर्ज रिची ने इनको बताया कि कैसे वो
केवल 20 मिनट के लिए, जब वो लिटरली डेथ बेड पर था, 9 मिनट के लिए वो आफ्टर लाइफ यानी शरीर को छोड़कर एक अलग दुनिया के अंदर गया, जहां उसने देखा कि उसकी आत्मा का अस्तित्व शरीर से बिल्कुल अलग है। जब पहली बार डॉक्टर रेमंड मूडी ने इसको सुना, आप यूट्यूब पर इनके लेक्चर्स, इनके एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उन्होंने क्लियरली बताया कि ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसे कई कई एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने सुना, और उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी जिसका नाम था लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। और उन्होंने कहा, आई डोंट माइंड सेइंग दैट आफ्टर टॉकिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कितने हजारों लोगों से मैंने बात की, ये क्लियरली शो करता है कि आत्मा का अस्तित्व आफ्टर डेथ रहता है। देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। लुक एट दिस, आज साइंस हमको बार बार बता रहा है कि हमारी शरीर मरता है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, उसका अस्तित्व विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता है। और इन्होंने 4 फीलिंग्स उसकी बताई। फीलिंग ऑफ बीइंग आउटसाइड द बॉडी, अपने आप को एक लाइट के स्वरूप में देखना, अपने आप को एक टनल वॉर्टेक्स, जो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के रूप में दिखाया गया कि एक लाइट की टनल में से वो जा रहा है। और ना केवल ये, एनकाउंटरिंग योर ओल्ड डेड रिलेटिव्स, ये 4 प्रकार की चीजें जो हैं आफ्टर लाइफ में हमको दिख सकती हैं। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जो है डॉक्टर रेमंड मूडी ने डिस्क्राइब किया था, वो है डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, हार्वर्ड न्यूरोसर्जन। वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो आपकी आंखों को खोल कर रख देगा। देखिए, हार्वर्ड के न्यूरोसर्जन यानी जो ब्रेन की सर्जरीज करते हैं, डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, उनका विश्वास ही नहीं था। लेकिन इनको एक ब्रेन की सिवियर इलनेस हुई, और नियर डेथ बेड पर ये रहे, 10 से 15 दिन ये वेंटिलेटर पर रहे। और उस वेंटिलेटर के दौरान इनको मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंसेस हुए, जिसको उन्होंने कहा द हेवन इज रियल। और ये उनका एक लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसको आज की डेट में मोस्ट क्रेडिबल अकाउंट एवर ऑफ आफ्टर लाइफ माना जाता है। और इनकी किताब का नाम है प्रूफ ऑफ हेवन, अ न्यूरोसर्जन जर्नी इनटू आफ्टर लाइफ। एक न्यूरोसर्जन की यात्रा आत्मा और शरीर के परिप्रेक्ष्य से बहुत अलग। और किस प्रकार से इन्होंने डिस्क्राइब किया, ये मैं आपको दिखाता हूं। जब डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर खुद कोमा में थे, अर्थात कंप्लीटली शरीर का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, उनकी बॉडी फंक्शंस कंप्लीटली आर्टिफिशियल सपोर्ट पर थे, उनको वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था, उनका ब्रेन लिटरली डेड था, उनका हार्ट को आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया जा रहा था, उनको सिवियर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था, उनकी आंखें नहीं खुलती थी, ब्रेन वेव प्रैक्टिकली फैटेंड थी। ऐसे समय पर जब उनको दोबारा होश आया, तो उन्होंने बताया कि उन 7 से 8 दिनों में उनकी एक यात्रा बहुत यूनिक यात्रा रही, और उन्होंने बहुत सुंदर हीलिंग का एक्सपीरियंस अपने जीवन में देखा। दोस्तों, जब वो कंप्लीट कोमा में थे, उन्होंने 2 बातें बहुत सुंदर बोली। उनकी आत्मा ने शरीर से डिटैच होकर एक एक चीज जो उनके शरीर पर की जा रही थी, उनके शरीर के ऊपर जो जो दवाइयां, जिस तरीके से कार्य किया जा रहा था, ट्रीट किया जा रहा था, वो सब कुछ उन्होंने एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर दिया। आप इमेजिन करिए, एक व्यक्ति जो वेंटिलेटर में है, कोमा पर है, और कोमा से वो जब 10-15 दिन बाद बाहर आता है, वो व्यक्ति कैसे बता सकता है कि किस दिन उसको कौन सी दवाई किस समय पर किस डॉक्टर ने, किस नर्स ने कैसे दी? ये कैसे फिजिबल है? ये तभी फिजिबल है जब कोई शक्ति डिटैच होकर दूर से ऑब्जर्व कर रही है। सेकंड, वो शक्ति जो उन्होंने अनुभव की, वो आफ्टर लाइफ यानी एक बहुत सुंदर यात्रा का भी उसने अनुभव किया। और उसमें उन्होंने 3 बातें बताई। उन्होंने बोला कि जब मैं इस शरीर के अंदर रहता हूं, तो मुझे शरीर के अंदर रहते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक केज के अंदर हूं, यानी एक जेल के अंदर हूं। लेकिन जब मैं शरीर से हट जाता हूं, तो मेरी जो फीलिंग है वो इतनी रियल है, इतनी एक्सपेंसिव है। तो ये इस अर्थ पर रहना, इस शरीर के अंदर रहना, ये केवल मुझे एक छोटा सा आर्टिफिशियल ड्रीम लगता है। जो रियल मेरा एग्जिस्टेंस है वो इस शरीर के बियॉन्ड है। दूसरी बात उन्होंने बोली, जब हम इस शरीर के परे रहते हैं, उसकी भाषा, उसके अंदर जो भावनाएं हैं, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो फैब्रिक है, वो केवल प्यार की भाषा है। वहां पर कोई और फीलिंग नहीं है। आत्मा जब इस शरीर से डिटैच होती है, वो केवल प्यार और शांति की भाषा समझती है। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि जब हम आफ्टर लाइफ यानी इस शरीर से बियॉन्ड होते हैं, उसमें शब्दों का कोई भी रोल नहीं रहता।
उसके अंदर केवल हम संकल्पों, उसके अंदर केवल हम वाइब्रेशंस के द्वारा ही दोस्तों कम्युनिकेट करते हैं। ये तीनों संकल्पों की और आत्मा की शक्ति मानी गई है। आप देखिए, जब हम अपने असली अस्तित्व में आज भी होते हैं, हम एक परिवार में बैठे होते हैं, पास में बैठे हैं, और अगर हमारा एक दूसरे के साथ स्नेह है, एक दूसरे के साथ हमारा प्यार है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमको बात करने की जरूरत नहीं है, हमारी वाइब्रेशन भी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं, और हम एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के प्यार के अंदर, एक दूसरे की जो कनेक्ट के अंदर हम लोग बहुत सुंदर अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा का जो भाषा है वो प्यार है, और आत्मा सबसे सुंदर तरीके से संकल्पों के द्वारा, टेलीपैथिक यानी वाइब्रेशंस के द्वारा दोस्तों कम्युनिकेट करती है। हमारे इस लाइफ के अंदर हमारे वर्ल्डली पोजीशन और हमारी पोजीशंस, इसका कोई भी मायना नहीं, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस दोस्तों नहीं है। दैट इज वाई आज बहुत सुंदर रूप से ये क्लियर दिखाया जा चुका है। डॉक्टर एबेल अलेक्जेंडर ने बहुत क्लियर बताया कि इस शरीर के अंदर जो कॉन्शियसनेस जब रहती है वो प्रैक्टिकली इसके अंदर केश रहती है, लेकिन जब वो इससे लिबरेट होती है, उसका अस्तित्व इससे अलग होता है, तो वो अपने आप को बहुत खुला, बहुत इजी और कंफर्टेबल महसूस करती है, और वही शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो डॉक्टर अनीता मूरजानी, बहुत फेमस स्टोरी जो नियर डेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, वो मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगा, जो आप लोगों को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। इट इज वंडरफुल, एवरीथिंग क्लियर ट्रुथ, बिल्कुल सच। आप देखिए, दिस इज इन 2005-2006। डॉक्टर अनीता मूरजानी और उनके हस्बैंड की ये रियल पिक्चर है, और ये न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल के अंदर रात को 1 बजे का एक डायलॉग है जिसको एज सच रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर उनके हस्बैंड को बोल रहा है, देयर इज नथिंग वी कैन डू फॉर योर वाइफ मिस्टर मूरजानी। आपकी वाइफ के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सारे ऑर्गन्स शट डाउन हो चुके हैं, उनके शरीर में फैला हुआ ट्यूमर नींबुओं के साइज से होकर उनके कंप्लीट शरीर में फैल चुका है, उनके एब्डोमेन में है, उनके ब्रेन के अंदर है, उनके स्कल के अंदर है, उनके ब्रेन के अंदर फ्लूइड है, उनके पानी लंग्स जो उनके पानी के अंदर भी है, उनकी चमड़ी फट चुकी है, और चमड़ी फट कर उसके अंदर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, उनके अंदर कंप्लीटली जो है वो बिल्कुल सड़ने के रूप में आ चुकी है। हम नहीं समझते, हम बहुत खेद के साथ कहते हैं कि आपकी वाइफ रात भर भी जीवित नहीं रह पाएंगी। स्टेज 4 कैंसर, कंप्लीटली ऑलमोस्ट डाइंग लेडी ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, होपलेस केस। और दोस्तों धीरे धीरे ये लेडी अपने आप को हील करने लगी, एंड अल्टीमेटली आफ्टर ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स द लेडी कंप्लीटली रिकवर्ड। दिस लेडी इज अनीता मूरजानी। इन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी, डाइंग टू बी मी, माई जर्नी फ्रॉम कैंसर टू नियर डेथ टू ट्रू हीलिंग। और इन्होंने कहा कि आई फेल्ट लिबरेटेड, आई फेल्ट फ्री। जब लोग मेरे शरीर को देख रहे थे, मेरा शरीर सड़ रहा था कंप्लीटली, मैं दूर डिटैच होकर अपने आप को देख रही थी और दूर से पावरफुल वाइब्रेशंस दे रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी फीलिंग थी कि आई विल बी परफेक्टली फाइन। आई फेल्ट फ्री, आई फेल्ट लिबरेटेड, आई फेल्ट मैग्निफिसेंट। मेरा दर्द, मेरा कष्ट, मेरा दुख सब समाप्त हो चुका था, और मुझे कोई भी इसकी याद कभी भी नहीं थी। दोस्तों जब ये लेडी रिकवर होकर आई, इन्होंने इस किताब को लिखकर क्लियरली बताया कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो हेवन है, वो हमारी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। इस शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाली जो हमारी शक्ति है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर इतनी शक्ति है जो डिटैच होकर भी कंप्लीटली शरीर को क्योर कर सकती है। दोस्तों आप देखते हैं कि जहां शरीर कंप्लीटली डिटोरेट हो रहा है, कंप्लीटली डेड बॉडी की तरह हो चुका है, वहीं डिटैच होकर अनीता मूरजानी ने सब कुछ क्लियरली अपने ऊपर, शरीर के ऊपर क्या क्या हो रहा था उसको क्लियरली डिस्क्राइब भी किया और उससे रिलेट भी दोस्तों किया। दिस वॉज लाइफ चेंजिंग। दोस्तों सिमिलरली डॉक्टर केनेथ किंग ने जो बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ब्लाइंड लोगों के अंदर किया, जो लोग देख नहीं पाते थे, और उन्होंने दिखाया कि जो लोग लाइफ से देख नहीं पाते, उन लोगों को जब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते थे, उनकी स्टडीज ने बताया कि दीज नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आर एब्सोल्युटली ट्रू, दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। और इसका बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने अपनी किताब माइंड साइट, नॉट आई साइट, माइंड साइट के अंदर इसको उन्होंने एनुमरेट किया।
दोस्तों इन सब एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हमको क्या पता लगता है? साइंस में नियर एंड ऑफ लाइफ देखा, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमने देखा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरीज हमने सुनी, कितने कितने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने जाना। लेकिन ये बातें हमको बताती हैं कि शरीर का अस्तित्व नहीं, कॉन्शियसनेस हमारे शरीर की पावरफुल शक्ति है, पहली बात। दूसरी, कॉन्शियसनेस, आत्मा, सोल, एनर्जी, गॉड स्पॉट, बीइंग, लाइट, जो भी नाम आप उसे देना चाहें, जो भी नाम आप उसे देना चाहें, वो शरीर से अलग एग्जिस्ट कर सकती है। तीसरी बात जो हमको क्लियर स्पष्ट होती है साइंस के द्वारा, वो इस शरीर के बाहर भी फंक्शन कर सकती है। चौथी बात, वो अपने शरीर को अपनी पावरफुल वाइब्रेशंस के द्वारा हील कर सकती है। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, अनीता मूरजानी, पावरफुल एक्सपेरिमेंट, दूर से डिटैच होकर जब उन्होंने अपने संकल्पों को पावरफुल किया, उस सुप्रीम एनर्जी से, वो सोर्स से वो लिया, जहां केवल प्यार और हीलिंग की एनर्जी थी, उनका दर्द समाप्त हुआ और शरीर ऑटोमेटिकली हील करने लगा। अर्थात आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को हील कर सकती है। और चौथी बात, इससे हमको पता लगता है कि आज हम अपने ब्रेन जो है, हमारा शरीर जो है, हमारी सोल के फंक्शन को लिमिट करता है। तो दोस्तों, आज क्या आप नहीं समझते कि ये जानना, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा? आप देखिए, डॉक्टर माइकल सेबम, जिनका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको नहीं दिखाया, जिन्होंने ब्रेन डेड पेशेंट पर क्लियरली सर्जरी की और उसने वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया कि आपने कब, कहां पर, कैसे इंसिजन दिया। डॉक्टर जेम्स विनरी, डॉक्टर केनेथ रिंग, डॉक्टर कार्ल बेकर, डॉक्टर सैम पेरिना, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स आज हमको दे रहे हैं ये प्रूफ कि यस, there is a energy, there is a powerful soul that is driving our body, जो हमारे शरीर को चला रही है, जिसको हम लोग गॉड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं या एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सुंदर मैरियो ब्रूगर्ड और पैक्विट ने सुंदर एक्सपेरिमेंट्स फंक्शनल एमआरआई के द्वारा किया इन कैरमेलाइट नन्स। और जब वो लोग नन्स जो है पूजा के अंदर बैठी थी, तपस्या कर रही थी, मेडिटेशन में थी, तो उन्होंने ब्रेन के अंदर देखा जो हाइपर इल्यूमिनेशन हो रही थी। मोस्ट पावरफुल illuminated area of brain was in front of the hypothalamus hypophyseal focus, जिसको उन्होंने गॉड स्पॉट का नाम दिया। जिसको आज भी अगर हम लोग आज से 500-600 साल पुरानी पिक्चर को देखेंगे, ये पिक्चर बहुत फेमस जो हमारे लियोनार्डो दा विंची थे, जो एक पेंटर थे, उन्होंने बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था द सीट ऑफ सोल इज, जहां ये दोनों लाइंस ब्रेन के सेंटर के अंदर क्रॉस करती हैं, जिसको उन्होंने ऑलरेडी इतने साल पहले क्लियरली प्रेडिक्ट किया था। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर फ्रेंच फिलोसोफर डॉक्टर रेनी डेस्कार्टेस, उन्होंने कहा था द सीट ऑफ सोल इज द पीनियल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ब्रेन के सारे ऑर्गन्स पेयर्ड हैं, लेकिन ओनली अनपेयर्ड ऑर्गन ऑफ ब्रेन इज पीनियल ग्लैंड, और ये हमारे ब्रेन का एनाटॉमिकल सेंटर है। यहीं पर ये इंटरमीडिएट गेट है जहां से स्पिरिचुअल और फिजिकल एक्सपीरियंसेस हमारी बॉडी के होते हैं, और यहीं से पावरफुल बॉडी केमिकल डाई मिथाइल ट्रिप्टामिन प्रोड्यूस होता है, जो हमको मिस्टिकल और साइकेडेलिकल एक्सपीरियंसेस के अंदर हमको डाल सकता है। यही वो जगह है जो हमारे सेंसरी और इमोशनल सेंटर्स के बिल्कुल क्लोज होती है, एमिगडाला और फ्रंटल कॉर्टेक्स के क्लोज। अर्थात सीट ऑफ सोल इज इन फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल फोसा। और इसका प्रैक्टिकल सरफेस लैंडमार्क दोस्तों हम लोग अपने जीवन में तिलक के रूप में देते हैं। आपने कभी देखा कि तिलक को हाथ पे लगाया जा रहा हो या पेट पर लगाया जा रहा हो या चीक्स पर लगाया जा रहा हो? नहीं, ये आत्मिक स्मृति का जो तिलक है ये फ्रंट में दिया जाता है, क्योंकि आत्मा का जो सरफेस लैंडमार्क है वो बिल्कुल फ्रंट में यहीं पर ही दोस्तों माना जाता है। तो हमारी आत्मा, हमारी सोल सेंटर ऑफ द ब्रेन में बैठती है, नियर द पिनियल बॉडी। जिस तरह एक कॉकपिट के अंदर पायलट भी जो है वो सेंटर में बैठता है। तो आज इस छोटे से एक ब्रीफ रोल से आपको ये तो स्पष्ट होता होगा कि यस, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक प्रोफाउंड लॉजिक है। हम लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, हम लोग केवल समझते थे होगा होगा, लेकिन आप सोचो कि कितना समय जीवन में आपने एक्चुअली समझा कि आप ये शरीर नहीं, आप ये आत्मा हो। पूरी लाइफ अपने जीवन के 50, 60, 70, 80 वर्ष हम अपने आप को शरीर ही समझते रहे, शरीर को ही ट्रीट करते रहे। जो हम थे वो हम अपने आप को जानते नहीं थे, और जो हम नहीं हैं वो हम अपने आप को दोस्तों पूरी लाइफ पहचानते रहते थे। तो आज बहुत आवश्यक है अपने संकल्पों को, अपनी सोच को परिवर्तन करना।
यही सोच मेरे जीवन को परिवर्तित कर देगी दोस्तों। यही मेडिटेशन का दोस्तों आधार है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। हमारे मेडिकल साइंस के अंदर दूसरा सब्जेक्ट जो हमको पढ़ाया जाता है वो है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। जैसे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी कुछ केमिकल्स पर काम करती है। और वो केमिकल्स क्या है? वो है हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे कर्म। दोस्तों ओम शब्द 3 शब्दों से बना है, अ, उ और म। अ आचरण, उ उच्चारण और म मन के विचार। जब तीनों के अंदर समन्वयता आ जाती है, मानव जैसा सोचता है सकारात्मक, वैसा ही वो बोलता है और वैसा ही वो कर्म करता है दोस्तों, तो ये समन्वयता हमारे जीवन के अंदर खुशी लाती है और आनंद लाती है। आज हमारे जीवन में मानव सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, और इसी कारण दोस्तों हमारे जीवन में तनाव आ जाता है। आज अपने जीवन को देखिए, हमारे संबंधों के अंदर, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, हमारे आपस में किस प्रकार से कौन से ऐसे इमोशंस है जो हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। आज क्यों मानव एक दूसरे के प्रति क्रोध, इरिटेशन की भावना है, हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति क्रिटिसिज्म की भावना, एक दूसरे के प्रति ग्लानि की भावना, कंप्लेन करना, ईर्ष्या और घृणा का आना, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखना, यही भावनाएं आज हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से गवर्न कर रही हैं। क्या आप अपने मन को, अपने जीवन की गाड़ी को इन भावनाओं से चलाने देना चाहेंगे? क्या क्रोध ही आपका अस्तित्व है? क्या संबंधों के अंदर हेट्रेड है, ईर्ष्या, घृणा है? क्या संबंधों के अंदर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे के लिए कंप्लेंट करना, क्या यही हमारे जीवन की सच्चाई है? दोस्तों नहीं। हम सब जानते हैं कि मूल रूप से चाहे कैसा भी व्यक्ति हमारे जीवन में हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हमारे जीवन में आए, हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा की, हमारे मन की चाह है, शरीर की नहीं दोस्तों, हमारे मन की चाह है कि हम खुश और शांत रहें। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं मेरा शरीर चाहता है मैं खुश रहूं। कभी आप ऐसा बोलते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरा शरीर चाहता है कि मैं किसी से नफरत ना करूं? नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि मेरा मन ये कहता है, मेरी आत्मा ये कहती है, मेरा मन ये कहता है, मेरे संकल्प ये कहते हैं। हम कभी नहीं कहते मेरा हाथ ये कहता है, मेरा मुंह ये कहता है। दोस्तों जब मेरा हाथ ये, मेरा मुंह कुछ नहीं कहता, मेरा मन, मेरा संकल्प, मेरी आत्मा कहती है, तो हमारा अस्तित्व हुआ क्या? हमारा अस्तित्व है हमारी आत्मा, हमारी सोल, जिसके निजी गुण, जिसके मूल रूप से जो गुण है वो है प्यार, वो है परमात्मिक खुशी, वो है आनंद की प्राप्ति, वो है शांति की अनुभूति, वो है परमात्मिक शक्ति की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति और संपूर्ण रूप से परमात्मिक प्यूरिटी की अनुभूति। यही मूल गुण आपका मूल अस्तित्व है, ये आपके जीवन का आधार है दोस्तों। जब आप अपने जीवन में इन गुणों को अनुभव करेंगे, आपका जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण बन जाएगा। जब हम अपनी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो ओरिजिनल फोल्डर होते हैं ना, जिस प्रकार से वो ओरिजिनल फोल्डर होते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से ये बातें भी, ये गुण भी हमारे मन के ओरिजिनल फोल्डर है। तो आज साइंस हमको ये सिखाती है कि जैसे आपके शरीर के केमिकल्स कार्य करते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन को भी सोल कॉन्शियस वे में जीना, बॉडी कॉन्शियस नहीं, आत्म अभिमानी, देह अभिमान नहीं, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, अर्थात हर आत्मा को प्यार करना, हर एक को स्वीकारना, हर एक को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के प्रति करुणा की भाव रखना दोस्तों, यही आध्यात्मिकता का मूल रूप है, मूल मंत्र है। राजयोग मेडिटेशन हमको ये नहीं सिखाता कि केवल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इस शरीर के कार्य को छोड़ दो, नहीं। राजयोग मेडिटेशन परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ हमको अपने कर्म से पलायन नहीं कराता है, वो हमको कर्म को और सुंदर रूप से कार्य करना दोस्तों सिखाता है। यही परमात्मा की ब्यूटी है। वो ये नहीं कहता कि घर बार से छोड़ो और जाकर भजन और कीर्तन करो, नहीं दोस्तों। हम घर बार से दूर जाकर संन्यास धर्म को अपनाकर भी हम अपने मन के विचारों के द्वारा फिर दोबारा अपने घर में आ सकते हैं, और अपने घर में भी रहते हुए अपने संकल्पों के द्वारा भी हम लोग डिटैच रह सकते हैं। दोस्तों संन्यास संकल्पों से होता है, संन्यास शरीर से नहीं होता। सच्चा संन्यास वो नहीं जो हमारे कर्मों से हो, कर्म रहते हुए भी कर्म योगी होकर रहना, कर्म कार्य कार्य करते हुए अपने जीवन को जीना, यही हमारे जीवन का दोस्तों मूल अस्तित्व है, जिसमें हमारी शांति, हमारा प्यार, हमारी पवित्रता, हमारे जीवन के एक एक एक्शन को दोस्तों सदा सदा निर्धारित और निर्णित करता है। यही हमारे जीवन का मूल रूप से दोस्तों आधार है, अस्तित्व है।
और इसीलिए इसको फॉलो करना बहुत 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 आवश्यक है दोस्तों। इसी प्रकार हम सब, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी दोस्तों, ये रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये किसके धर्म है? ये आपके शरीर के धर्म है। अगर आज डॉक्टर मोहित गुप्ता ने किसी मुसलमान के यहाँ जन्म लिया होता तो उनका नाम किसी मुसलमान के अकॉर्डिंग संज्ञा पड़ जाता। अगर उनका धर्म किसी सिख के यहाँ हुआ होता तो उसका नाम सिख के हिसाब से पड़ जाता। अगर किसी क्रिश्चियन के यहाँ लिया होता तो उनका नाम किसी क्रिश्चियन के हिसाब से पड़ जाता। नाम और धर्म दोस्तों हमारे शरीर की पहचान देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी सोल कॉन्शियस, हमारी मूल लाइट जो है, उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि हम सब का पिता परम पिता परमात्मा, सर्व धर्मों का पिता एक है। सर्व धर्मों का पिता एक है। इसलिए आज ये समझना बहुत आवश्यक है कि यथार्थ आध्यात्मिकता और राजयोग मेडिटेशन हमको किसी धर्म से नहीं जोड़ती। जब भी लोग पूछते हैं कि आपके धर्म में क्या सिखाता है, मैं कहता हूं भाई, ये धर्म कोई और धर्म नहीं, ये आत्मा का धर्म है, ये प्योरिटी का धर्म है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमको सिखाते हैं दोस्तों। सेकंड प्रोफेशनल में जब हम लोग जाते हैं, अर्थात जब हम अपनी पढ़ाई के अंदर मेडिकल स्कूल में जाते हैं, तो हमको पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ाई जाती है। यानी ऐसे कीटाणु, ऐसी बातें जो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन या हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करती हैं। कितनी कितनी ऐसी चीजें आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी हमने अपने मन, अपनी आत्मा की बीमारियों की तरफ भी ध्यान दिया है? आप स्वयं सोचो, क्या आपको लगता है कि आपका मन भी आज पुकारता है? यदि आपको एक दिन में भी, एक हफ्ते में नहीं, एक दिन में भी, एक घंटे में भी आपका मन कभी कभी कहता है कि मैं थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे क्रोध आता है, मुझे आराम चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना है, यदि आपको लगता है आपके जीवन में ईर्ष्या, घृणा, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, इरिटेशन, कंपैरिजन, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, एक्सपेक्टेशंस, ये भावनाएं कहीं ना कहीं आती हैं, तो आज आपकी आत्मा, आपका मन पुकार रहा है कि कृपया मुझे आराम दो। बचपन से तुम यूज कर रहे हो। जो भी चीज दोस्तों यूज की जाती है लगातार, उसको रोकना जरूरी है। अगर गाड़ी चल रही है, उसको रोकना जरूरी है। पंखा चल रहा है, उसको रोकना जरूरी है दोस्तों। इसी प्रकार जब हमारी मन, हमारी आत्मा लगातार कार्य करती है, उसको भी आराम देना बहुत बहुत आवश्यक है। आप देखो, डिजीज शब्द बना ही दो शब्दों से, दिस प्लस ईज। जब इजीनेस हमारे शरीर से चली जाती है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। ये शरीर से नहीं, ये हमारी मन, हमारी आत्मा से जाती है। आप डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, देखो, जब आप किसी से प्यार से बात करते हो तो क्या होता है? प्यार से बात करते ही उसका दुख, उसका कष्ट समाप्त हो जाता है, और आप, वो कहता है कि आपसे बात करके ही मेरी आधी बीमारी दूर हो गई। कैसे दूर हुई? आपने तो दवाई नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने अपने शब्दों, अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा उसकी आत्मा का कष्ट जो है वो समाप्त कर दिया, उसको सुकून दिया, उसको शांति दी दोस्तों। तभी कोई भी परिस्थिति हमारे मन पर पहले प्रभाव डालती है। ध्यान से देखो उसको। वो हमारे जीवन के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, डिसइंटरेस्ट, कंफ्यूजन, एंगर लाती है। जब भी देखो कोविड जैसी सिचुएशन आई, कोई और बीमारी आई, उसने शरीर पर बाद में प्रभाव डाला, लेकिन हमारे मन को बहुत बहुत पावरफुल तरीके से दोस्तों इन्फ्लुएंस किया। इसी प्रकार जब बीमारी हमारे मन पर आ जाती है तो उसका शरीर पर मैनिफेस्टेशन आरंभ होता है। आज कोई भी बीमारी आप लें, चाहे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लें, चाहे पेट की बीमारियां लें, चाहे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स लें, चाहे इम्यून डिसऑर्डर्स लें, हार्ट की बीमारियां लें, कोई भी बीमारी को आप लें दोस्तों, हर बीमारी के अंदर आज हमारी साइकी का, हमारे मन का बहुत बहुत पावरफुल रोल है। अगर मन खुश है तो शरीर बीमारे होते हुए भी हमको अच्छा लगेगा। स्वयं से पूछो, अगर मन खुश तो आप लगेगा कोई बात नहीं, ठीक है ना, सेलिब्रेट करते हैं। अगर मन मेरा बीमार है तो शरीर स्वस्थ रहते हुए भी मुझे दुख का, मुझे बीमारी का दोस्तों अनुभव होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, अब जब हम लोग अपनी शरीर की पैथोलॉजी और बीमारी, आत्मा की बीमारी को समझ जाते हैं, तो उसको दवाई देना भी आवश्यक है। तो आत्मा की दवाई कौन देगा? जैसे शरीर को गोलियों से हम ठीक करते हैं, ऑपरेशंस के द्वारा ठीक करते हैं, इसी प्रकार आत्मा को ठीक करने के लिए, कॉन्शियसनेस को ठीक करने के लिए, सोल को ठीक करने के लिए, लाइट को ठीक करने के लिए, एनर्जी को ठीक करने के लिए हमको किससे जोड़ना पड़ेगा? हमको सुप्रीम सोल से जोड़ना पड़ेगा, हमको सुप्रीम एनर्जी से जोड़ना पड़ेगा, हमको सुप्रीम लाइट से जोड़ना पड़ेगा, हमको सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जोड़ना पड़ेगा। कभी आपने किसी भी धर्म, वेद, शास्त्र में ये सुना है परम शरीर? कभी भी सुना है? आप स्वयं सोचिए, लॉजिक से सोचिए।
परम पिता परमात्मा को हर धर्म वेद शास्त्र के अंदर परम आत्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल कहा जाता है। कभी आपने सुप्रीम बॉडी या परम शरीर नहीं सुना होगा। संज्ञाएं दोस्तों आत्मा को मिलती है। महान शरीर, पाप शरीर, पुण्य शरीर, देव शरीर कभी भी नहीं कहा जाता। महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, ये संज्ञाएं आत्मा को ही दी जाती हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए, हील करने के लिए उसको परम पिता परमात्मा से जोड़ना बहुत बहुत आवश्यक है। आज देखो हम मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं। हम लोग तत्वों की पूजा करते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं, बिल्लियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम उस परमात्मिक शांति से दोस्तों वंचित रह जाते हैं। बहुत आवश्यक है कि आज परमात्मा से शांति की भीख जो हम मांग रहे हैं, उस सत्य परमात्मा के अस्तित्व को भी हम लोग पहचाने, जो इन द्वारा हमको सुख और शांति देता है। एक बहुत सुंदर कन्वर्सेशन जो मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगा। उससे पहले आज जो साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा है डॉक्टर पैम रीनॉल्ड, डॉक्टर मेल्विन मॉर्स, डॉक्टर ग्रे श्वार्ट्ज एंड डीन रैडन, इन्होंने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी राइट टेम्पोरल लोब ब्रेन की एक्टिविटी ये क्लियरली बताती है कि मेडिटेशन के अंदर हमारी आत्मा का कनेक्शन एक सुप्रीम एनर्जी से होता है, जिसको वो लोग पहचान नहीं पाते। वो ये भी कहते हैं कि जब हम इन एरियाज को स्टिमुलेट करते हैं तो एक व्यक्ति पेनॉर्मल एक्सपीरियंसेस यानी डिवाइन एक्सपीरियंस के अंदर जा सकता है। गॉड स्पॉट की थ्योरी देखते हुए डॉक्टर मेल्विन मोर्स ने बहुत सुंदर बताया कि ब्रेन यानी आत्मा का एक पावरफुल कनेक्शन एक सुपर पावर के साथ है, और इसी का एक सुंदर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो है ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, यानी कॉन्शियसनेस रिसर्च इज एबल टू सपोर्ट द रियलिटी ऑफ एन अनसीन पावर। दोस्तों कोई शक्ति तो है जो कार्य कर रही है। एक बहुत सुंदर कन्वर्सेशन जो आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जो एक रिवीलिंग और पावरफुल कन्वर्सेशन है, और ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत हंसी आएगी इसको सुनकर। एक एथिस्ट प्रोफेसर जो अपने स्टूडेंट से मिलने आया और उसने कहा कि हम लोग साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं, हम लोग परमात्मा को नहीं मानते, हम क्यों माने परमात्मा है। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है कि गॉड को हम क्यों नहीं मानते। तो उसने कहा अपने स्टूडेंट से पूछते हुए, एक स्टूडेंट को खड़ा करके, कि क्या तुम परमात्मा को मानते हो। तो स्टूडेंट ने कहा जी सर मैं बिल्कुल मानता हूं। उसने कहा कि क्या तुम्हारा परमात्मा अच्छा है। तो उसने कहा यस परमात्मा तो बहुत अच्छा है। तो उसने कहा तुम्हारी 5 सेंसेस हैं जो तुम्हारे को आइडेंटिफाई करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं वर्ल्ड अराउंड यू। क्या तुमने कभी परमात्मा को देखा है, सुना है, कभी परमात्मा को महसूस किया है, खाया है, चखा है। तो वो व्यक्ति कहता है, बच्चा कहता है जी सर मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया, तो फिर भी तुम उसे मानते हो। तो स्टूडेंट ने कहा जी हाँ मैं उसे मानता हूं। तो प्रोफेसर ने कहा नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल टेस्टेबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल, साइंस कहती है तुम्हारा परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो स्टूडेंट ने कहा सर कुछ नहीं, मेरा तो केवल विश्वास है कि मैं मानता हूं कि परमात्मा इस दुनिया में जरूर है और वो एग्जिस्ट करता है। तो प्रोफेसर ने कहा बेटा ये विश्वास पर साइंस नहीं चलती, मैं नहीं मानता क्योंकि साइंस विश्वास पर नहीं चलती है। तुम कहते हो मेरा विश्वास है भगवान पर, इस तरह नहीं चलती। सब क्लास में छम हो गए, एवरीबडी वॉज क्वाइट, सब एकदम चुप हो गए। थोड़ी देर बाद शांति के बाद स्टूडेंट खड़ा हुआ और वही स्टूडेंट ने मुस्कुराते हुए बोला कि क्या हमारी क्लास में कभी किसी ने प्रोफेसर का ब्रेन देखा है। सब हंसने लग गए, दिमाग देखा है। तो प्रोफेसर ने कहा क्या आप में से किसी ने प्रोफेसर के ब्रेन को सुना है, उसको महसूस किया है, उसको सूंघा है, उसको चखा है। किसी ने भी नहीं किया हुआ। सो सर अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ एम्पेरिकल स्टेबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल, साइंस कहती है सर आपके अंदर ब्रेन है ही नहीं, आपके अंदर दिमाग है ही नहीं, तो सर हम आपके लेक्चर्स को क्यों ट्रस्ट करें, हम क्यों माने। प्रोफेसर समझ गया और मुस्कुराने लगा और उसने कहा बेटा तुम्हें विश्वास पर लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि सर यही मैं आपको बता रहा था कि परमात्मिक शक्ति और हमको जोड़ने वाली जो शक्ति है वो विश्वास ही तो हमारा है। ये विश्वास ही तो हमारे जीवन में हमारे जीवन को चलाता है और यही हमारे जीवन में दोस्तों परिवर्तन लाता है। तो आप स्वयं सोचिए कि अगर मैं स्वयं आत्मा हूं जो साइंस प्रूव कर चुकी है, तो मेरा पिता कौन होगा। वो परम पिता परम आत्मा ही तो होगा, परम शरीर तो दोस्तों नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इस कम्युनियन को ही, आत्मा और परमात्मा के सुंदर मिलन को ही दोस्तों योग और मेडिटेशन कहा जाता है।
यही राजयोग मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन में है क्या? बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूं। आप यहीं पर बैठे होंगे, सभी लोग ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनते हुए दोस्तों अपने वीडियोस को ऑन करिए, और ऑन करके मेरे साथ ध्यान से इस यात्रा पर चलिए। जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, आप यहीं बैठे बैठे अपने घर पर चले जाइए या अपने ऑफिस पर चले जाइए, यहीं पर बैठे हुए चले जाइए। आप देखिए शरीर वहीं पर ही है, और अपने संकल्पों के द्वारा आप हॉस्पिटल, ऑफिस या घर पर जहां जाना चाहते हैं आप चले गए। अपने घर पर जाकर अपने बेडरूम को देखिए, अपने ड्राइंग रूम को देखिए, अपने किचन के अंदर जाइए, वहां आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं अपने घर के किसी सदस्य को देखिए, उनको हेलो करिए, और हेलो कहकर वापस आ जाइए, और आप वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों यदि मैं आप लोगों में से पूछूं कि कौन कौन गया था, तो आप सब लोग कहेंगे आप लोग गए थे। क्यों गए थे या नहीं गए थे? क्यों दीपिका जी, आप क्या कहेंगे, आप गए थे या नहीं गए थे? बिल्कुल 100% गए थे, देयर इज नो डाउट। लेकिन आप शारीरिक रूप से तो मुझे देख रहे हैं, तो गया कौन था? गया आपके संकल्प, आपका मन गया था। राजयोग मेडिटेशन में दोस्तों शरीर का कोई भी रोल नहीं होता, ये केवल हमारे मन की, हमारी आत्मा की यात्रा है। इस आत्मा की यात्रा के द्वारा ही हम अपने जीवन में दोस्तों परिवर्तन ला सकते हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल कम्युनियन बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल, जो हमारे जीवन में सकारात्मक एनर्जी लाती है। आप देखो, जैसे बल्ब बुझा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी आती है तो लाइट जल जाती है, इसी प्रकार जब हमारी आत्मिक ज्योत जलती है परमपिता परमात्मा के कम्युनियन के साथ दोस्तों, उसी प्रकार आप देखेंगे हमारी आत्मिक ज्योत जलने के साथ हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। तो मेडिटेशन इज गिविंग इमोशनल रेस्ट, टेकिंग केयर ऑफ योर सोल। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो ना रोज, उसी तरह कुछ पल अपने आप को इस शरीर से डिटैच कर कर आत्मिक रूप में स्थित होकर अपने आत्मा की बैटरी को भी चार्ज करें। आज हम लोग अपने लॉजिकल ब्रेन के द्वारा कार्य करते हैं। देखिए, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग डिसाइसिव हैं, एनालिटिकल हैं, रीजनिंग है, स्ट्रेटेजिक है, लॉजिकल है दोस्तों। लेकिन जब हमारा लेफ्ट ब्रेन कार्य करता है, जब हम स्पिरिचुअल ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन होलिस्टिक लाइफ को बना देता है। हमारा राइट ब्रेन लविंग है, पोएटिक है, पैशनेट है और क्रिएटिव है। यही हमारा सुंदर अस्तित्व है जो हमारे जीवन के मायने को दोस्तों निर्धारित करता है, यही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता है। आज साइंस के रूप से आप देखेंगे तो केवल 15 मिनट की मेडिटेशन, एक नॉर्मल व्यक्ति के ब्रेन वेव्स बिल्कुल डिसिंक्रोनस होते हैं। आप देख रहे हैं ऐसा ब्रेन वेव, लेफ्ट और राइट ब्रेन बिल्कुल डिसिंक्रोनस है। ऐसा ब्रेन एंजाइटी के प्रोन है, डिप्रेशन के प्रोन है और पुअर मेंटल हेल्थ के प्रोन है। लेकिन जब 15 मिनट आप केवल मेडिटेशन करते हैं तो देखिए कितनी सुंदर सिंक्रनी हमारे ब्रेन्स के अंदर आ जाती है। दोनों ब्रेन वेव्स के अंदर कितनी पावरफुल सिंक्रनी आ जाती है, और 25 मिनट मेडिटेशन के बाद आपका ब्रेन बहुत पावरफुल, इमोशनली स्टेबल और इंटीग्रेटेड सिस्टम दोस्तों बन जाता है, बहुत स्टेबल सिस्टम दोस्तों बन जाता है। दिस इज द पावर ऑफ राजयोग मेडिटेशन। तो क्या आज आप अपनी यात्रा पर नहीं चलना चाहेंगे? हमारे दोस्तों, हमारे आखिरी ट्रेनिंग के अंदर जो इंटर्नशिप में हमको क्लिनिकल प्रोफेशनल में डाला जाता है, जहां जो ज्ञान हम सीखते हैं ना, उसको हम लोग अपने लाइफ में मरीजों पर उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक डॉक्टर्स बन जाते हैं तो उन वाइब्रेशंस को स्वयं की हीलिंग के साथ साथ अन्य आत्माओं की हीलिंग के लिए भी यूज करना दोस्तों बहुत आवश्यक है। और जानते हैं ये वाइब्रेशंस क्या हैं? इन 4 वाइब्रेशंस को आज सदा सदा अपने जीवन में अपने साथ लेकर जाएंगे। ये 4 वाइब्रेशंस हैं हर एक के लिए करुणा की भावना। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आए, उसके लिए जीवन में करुणा होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों हर आत्मा के प्रति प्यार की भावना एक दिन के लिए करके देखिए, आपके जीवन में जादू होगा, आपके जीवन में मैजिक होगा। करुणा है, जिस मन जिस हृदय के अंदर प्यार है, जिस जीवन के अंदर संकल्पों के अंदर शांति है, हृदय के अंदर शांति है, वही मानव जो है, वही जीवन जो है वो श्रेष्ठ और राजयोगी जीवन है। राजयोगी जीवन ये नहीं कि हम कह कुछ और रहे हैं और जीवन के अंदर क्रोध कर रहे हैं, जीवन के अंदर घृणा और ईर्ष्या कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर परमात्मिक अनुभूति को लाना, यही हमारे जीवन का यथार्थ सत्य है। एक बारी एक महात्मा के पास कुछ लोग गए और उन्होंने बोला कि महात्मा जी, जब भी आप परमात्मा को याद करते हैं, आप देखते हैं बीच बीच में 2 बारी आप शीशे को देखते हैं, ऐसा क्यों? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो।
जब भी मैं परमात्मा को याद करके बैठता हूँ और मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट आता है तो शीशे को देखता हूँ और शीशे के अंदर मुझे अपनी परेशानियों का सारा स्तोत्र दिखाई देता। तो उन्होंने कहा आपको तो अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो, मेरे जीवन की सारी परेशानियों का जो कारण है वो स्वयं मैं हूं। उन्होंने कहा ठीक है, एक बारी तो हमें समझ में आया, पर दूसरी बारी शीशे को क्यों देखते हैं? तो उसने कहा जब मैं दूसरी बारी देखता हूं तो मुझे अपने जीवन की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा उसमें आपको अपनी फोटो दिखाई देती होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, यदि मेरे जीवन की समस्याओं का कारण भी मैं हूं तो उसका निवारण भी मुझसे ही आरंभ होता है। दोस्तों, परिवर्तन ही हमारे जीवन के समस्याओं का अंत है। अगर हम आज परिवर्तित नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। हम अगले साल फिर सुन रहे होंगे लेकिन जीवन हमारा वही रहेगा। दोस्तों, एक महात्मा के पास कुछ लोग गए और उन्होंने बोला कि हम परमात्मा को कब याद करें? तो उसने कहा आज याद करो। क्यों? क्योंकि आप अपने मरने से पहले एक ही दिन पहले याद करना। तो उन्होंने कहा हमको तो ये नहीं मालूम कि हम कब मरेंगे। तो उसने कहा आज याद करो, क्योंकि कल का तुम्हें किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी इसी प्रकार की यात्रा है। प्रेशर्स है, फोन्स है, कॉल्स है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आज अपने आप को सुंदर यात्रा पर हम लोग लेकर चलते हैं। यही अनुभव है, यही अनुभवों की खान है, यही जीवन परिवर्तन का आधार है। तो चलिए केवल कुछ पलों के लिए हम मेडिटेशन का अनुभव करें। एक गहरी सांस लेते हुए बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़, शरीर से अलग, शरीर में विद्यमान अपने आप एक चमकता हुआ ज्योति पुंज के रूप में देखें, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, जैसे मंदिर के अंदर विद्यमान मूर्ति, जैसे सीप के अंदर मोती, जैसे पत्ते के ऊपर एक ओस की, इसी प्रकार इस शरीर के अंदर विद्यमान मैं एक शक्तिशाली, पवित्र, परमात्मिक प्यार से परिपूर्ण आत्मा, एनर्जी अनुभव करें। अनुभव करें परमात्मिक प्योरिटी और प्यार की वाइब्रेशन मेरे एक एक संकल्प को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना रही है। यही मेरा अस्तित्व है। अनुभव करें शरीर बहुत शांत, संकल्पों की शक्ति शरीर को बिल्कुल शांत कर दे। इस शक्तिशाली ऊर्जा मंडल मेरे संबंधों को ध्यान और शांति से परिपूर्ण करना। शक्तिशाली ऊर्जा मंडल मेरे जीवन को आनंद से परिपूर्ण करता है। हर आत्मा के प्रति स्नेह, करुणा और शांति, यही मेरे जीवन का लक्ष्य और ध्येय है। कार्य करते हुए शांत और सुकून और आनंद की अनुभव करें। ये शक्तिशाली
सागर की लहरों की तरह मेरी आत्मा उस परमात्मिक प्यार स्नेह में समाती जा रही है। इसी स्थिति में स्थित रहते हुए हर कार्य धीरे धीरे वापस शरीर में आए, लेकिन मन बिल्कुल हल्का, राजयोग। एक एक मिनट का भी अभ्यास हमारे जीवन में हमारे मन को बहुत शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाता है, बहुत पावरफुल बनाता है। और ऐसा अभ्यास करने से कहीं ना कहीं हम अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन जो है बहुत पावरफुल और शांत हो जाता है। यही हमारे जीवन के परिवर्तन का आरंभ है। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता के बारे में सुनना और उसको अपने जीवन का अंग बनाना, उसको पाठ बनाना, इन दोनों मायनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। आज के सत्र में हमने आपको केवल एक ओवरव्यू दिया, जिसके द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं कि क्यों इस शरीर के भान से परे मैं स्वयं को एक शक्तिशाली आत्मा और ऊर्जा के रूप में अनुभव करूं। कार्य करना है, जैसे मैं भी हार्ट सर्जरीज करता हूं, आप लोग भी करते हैं, बाकी सब कार्य अपना करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि आप सब कुछ करें, लेकिन कर्म करते हुए मेरे मन की स्थिति बड़ी पावरफुल और श्रेष्ठ, आनंद से परिपूर्ण। तो जॉब केवल ट्रीट करना नहीं है हमारा। अगर हम जिंदल हॉस्पिटल का नाम लें या साइंसेस का नाम लें, तो वो हॉस्पिटल केवल वो नहीं जो मरीजों का इलाज करता हो, ट्रीट करता हो, वो उन आत्माओं को जो दर्द और कष्ट में आती है उनको हील करता हो। हीलिंग जो होती है वो शरीर का इलाज और मन को संपूर्ण रूप से सुख और शांति की प्राप्ति की होती है। यही हमारे जीवन का अस्तित्व और आरंभ है। दोस्तों, चलिए आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम एक नई यात्रा का आरंभ करते हैं। एक ऐसा सुंदर देश, एक ऐसा सुंदर समाज, एक ऐसा सुंदर जीवन बनाते हैं जिसके आभा मंडल में कोई भी आएगा तो वो सुकून, प्यार और शांति का अनुभव करेगा। ओम शांति। Just a minute. Any other questions? Any comments, please? Anything I can do? Anybody else? Yeah. आप कृपया अनम्यूट कर दीजिए, जो भी होस्ट है सबको प्लीज अनम्यूट करिए। अलाउ देम टू अनम्यूट, या मुझे होस्ट बना दीजिए। आई विल डू दैट प्लीज। मुझे होस्ट बना दीजिए, आई विल डू दैट प्लीज। आप अनम्यूट कर सकते हैं दीपिका जी और बोल सकते हैं, प्लीज गो अहेड। Thank you so much, Dr. Mohit. I think it was the most amazing journey, and I'm sure the doctors in the hospital have gained a lot of information. They were very keen to know about Raj Yoga meditation. We've created a very special meditation room in our hospital, and I'm sure they'll have multiple questions for you. And I personally myself practice this, and I have seen the benefits in my life. And I hope each and everyone who's not a Raj Yoga meditator or a part of this. Sorry, I think I got.
So thank you so much. I mean, I also heard a lot and learned a lot from your presentation today. And we look forward to more interactions with you. And thank you for always being so gracious and coming forward and guiding us and sharing your experiences with us. So we will always be in touch with you. Thank you so much for today. Thank you. Om Shanti. So much everyone. ओम शांति. और आज सब संकल्प लेकर जाएंगे. वंडरफुल डे है, बड़ा डे. ओम शांति सर. ओम शांति सर. ओम शांति सर. बड़े दिन पर हम सब ओम शांति सर. ओम शांति. अब एक ओम शांति है. सब एंजल्स ध्यान से सुनेंगे. शांति. लेकिन एक ध्यान से सुनेंगे. वो बात है कि हम सब लोग आज एक संकल्प लेकर जाएंगे कि परिवर्तन हमें करना है. इस परिवर्तन की अग्नि को अपने जीवन में प्रज्वलित करना है. तो सब भाई इतने सारे हमारे साथ जुड़े हैं, सब अपने वीडियोस को एक बार ऑन करें. दीपिका जी भी देखें और सब लोग, गॉड भी देखे, परमात्मा भी देखे कि आज कितने कितने दूर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है. एक एक सेकंड के लिए जो कन्वीनियंट पोजीशन में सब देखें और एक पावरफुल से परिवार के रूप से दृष्टि दें. देखें कि ये शरीर अलग है लेकिन हम सब आत्माएं एक दूर से प्यार से कनेक्टेड है. कितने सुंदर रूप से कनेक्टेड है या नहीं सब. तो सब वीडियोस ऑन करो, सब एक एक सेकंड के लिए वीडियोस ऑन करो और साथ रहकर प्यार से एक दूसरे को देखो कि आज से हमें चेंज होना है. इस यात्रा को, सुंदर जीवन को सुंदर बनाना है. और यही सुंदर जीवन जो है हमारे विश्व को भी परिवर्तित कर देगा. हमारे जीवन के अंदर जब सतयुग यहाँ पर आएगा, सतयुग मेरी लाइफ में आएगा, मेरे घर में आएगा, तो सृष्टि पर भी परिवर्तन जरूर होगा ही होगा. लेकिन सबसे पहले यहाँ पर होगा. ओके, आप सबको ओपन इनविटेशन है. आपके अपने घर, परमात्मा के घर, माउंट आबू पर प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो. कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू कम्युनिकेट. Thank you and Om Shanti. Om Shanti. Thank you everyone for this opportunity. Thank you. ओम शांति.